will be president for all Americans. Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. جی سے شروع ہوتا ہے ہر سوال اور ہر ضروری سوال کے جواب کے لیے تجربے، تحقیق اور حقائق پر مبنی پاکستان کا سب سے قابل اعتبار نیوز پروگرام جی فار غریدہ۔ جی السلام علیکم۔ پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے حوالے سے۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہونے کے لیے اب صرف 2 دن کا وقت رہ گیا ہے۔ صرف 2 دن کا انتظار ہے۔ پورے پاکستان سے شائقین کرکٹ کا جوش و خروش پورے عروج پہ ہے۔ ٹکٹوں کی تعداد ختم ہو چکی ہے لیکن شائقین کرکٹ کا جوش و خروش کم نہیں ہو رہا۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور ساتھ ہی ساتھ حکومت افواج پاکستان کے ساتھ مل کے پی ایس ایل فائنل کے لاہور میں سیکیورٹی کو بھرپور طور پہ یقینی بنانے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کے تحفظات اور خدشات پر مبنی بیانات بھی جاری ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اپنے شدید تحفظات کا اور خدشات کا اظہار کیا ہے۔ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کا فائنل اس سیکیورٹی کی سچویشن میں پاکستان میں کروانا پاگل پن ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ جس طرح کی کرفیو والی سیکیورٹی لگا کے پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں کروایا جا رہا ہے، اس سے دنیا بھر میں امن کا پیغام نہیں جائے گا، اور اس طرح کا کرفیو لگا کے تو عراق اور شام میں بھی کسی بھی قسم کے میچز یا کسی بھی قسم کا ایونٹ کروایا جا سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے اس بیان کا رد عمل بھی آیا ہے نون لیگ کی طرف سے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کافی سخت جواب دیا ہے عمران خان صاحب کو۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب منفی سیاست کرتے ہیں اور پاکستان کا تاثر، پاکستان کا امیج وہ عالمی دنیا میں خراب کر رہے ہیں۔ ایک ذرا دنیا بھر کی ہسٹری پہ، خاص طور پہ سپورٹس کی، گیمز کی ہسٹری پہ اگر نظر ڈالی جائے، ایکسکلوسیولی ہم آپ کے لیے کچھ ریسرچ کر کے سامنے لے کے آئے ہیں کہ دنیا بھر میں کہاں کہاں پر گیمز اور گیمز کے بڑے بڑے ایونٹس دہشت گردی کا شکار ہوئے، لیکن اس کے باوجود قوموں نے ہمت نہیں ہاری اور ان علاقوں میں کہ جہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہو چکے تھے دوبارہ سے گیمز کا انعقاد کیا، اور دہشت گردی کے واقعات کے فوراً بعد ہی گیمز کا انعقاد کیا اور اپنے حوصلے، اپنے عزم، اپنی ہمت کو کم نہیں ہونے دیا۔ 1972 کا واقعہ ہے کہ میونخ میں اولمپک گیمز ہو رہے تھے، جہاں پر بلیک سپٹمبر نامی ایک تنظیم نے ہاسٹیج بنا لیا، اغوا کر لیا کچھ کھلاڑیوں کو اور انہیں قتل بھی کر دیا، انہیں ذبح کر دیا۔ یہ اولمپک کی گیمز کا ایک خوفناک، انتہائی تشویشناک واقعہ ہے، اور 1972 کے اولمپکس کے بعد سے اولمپکس کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے، لیکن سخت ترین سیکیورٹی میں بھی دنیا بھر میں اولمپکس ہوتے رہے۔ 1996 کا اٹلانٹا میں ہونے والا اولمپک گیم سے پہلے ایک کنسرٹ ہونا تھا۔ اس کنسرٹ میں 3 بام بلاسٹ کیے گئے، پلانٹڈ بام بلاسٹ، لیکن اس کے باوجود 1996 کا اٹلانٹا اولمپکس اپنے وقت اور اپنے مقام کے مطابق ہی ہوا۔ اسی طرح 2002 میں میڈرڈ اسپین میں چیمپئنز لیگ جاری تھی کہ جہاں پر ایک کار بم دھماکہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود چیمپئنز لیگ کا انعقاد ہوا اور میڈرڈ نے ہی اس ایونٹ کو جیت کے اپنے عزم اور اپنی ہمت کا اظہار کیا۔ امریکہ میں 9/11 کا سانحہ، 9/11 کا سیکیورٹی سانحہ دنیا کی تاریخوں میں دہشت گردی کا بڑا واقعہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود 9/11 کے فوراً بعد جو پورے امریکہ میں مختلف گیمز کے ایونٹس شیڈیول تھے وہ اپنے شیڈیول کے مطابق ہوئے، اپنے مقامات پہ ہوئے، البتہ ان کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی۔ بالکل کرفیو کا عالم تھا کہ جہاں جہاں پر گیمز ہونی تھیں، جہاں جہاں میچز امریکہ کے اندر ہونے تھے، وہاں بالکل کرفیو والی سیکیورٹی لگا کے لیکن ان میچز، ان گیمز کا انعقاد کیا گیا۔ اس طرح بیجنگ میں، چائنا میں جب اولمپک ہوا تو مشعل جلانے کے دن سے صرف 5 دن پہلے
کاشغر میں ایک حملہ ہوا، لیکن اس حملے میں بہت بڑا جانی نقصان ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بیجنگ گیمز، بیجنگ اولمپکس ہوئے، سخت ترین سیکیورٹی میں ہوئے پورے چائنا میں، خاص طور پہ جس شہر میں بیجنگ میں اولمپک ہونے تھے وہاں پر کرفیو کی طرح سیکیورٹی کی صورتحال تھی، لیکن اس کے باوجود اولمپکس بیجنگ میں ہوئے، چائنا میں ہوئے، اور پوری دنیا کو ایک پیغام دیا گیا کہ گیمز کبھی بھی دہشت گردی سے یا خوف کے آگے شکست نہیں کھاتی۔ بھارت کی مثال سب کے سامنے ہے، وہاں پر بہت بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پہ 13 ستمبر 2008 کو دلی میں جو بم دھماکے ہوئے، اس وقت آسٹریلین کرکٹ ٹیم بھارت کے دورے پہ تھی، لیکن اس کے باوجود یہ بھارت کا دورہ جاری رہا۔ سری لنکا جس طرح سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اگرچہ وہاں سے بھی کرکٹ کچھ عرصے کے لیے ختم ہو گئی تھی، بین ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود سری لنکا نے دہشت گردی کے خلاف اپنے عزم کو ناکام نہیں ہونے دیا اور اپنی سیکیورٹی کی صورتحال پہ قابو پایا، اور آج سری لنکا گیمز کے لیے محفوظ ہے۔ اسی معاملے پر ہم بات کریں گے، میرے ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب صاحب۔ السلام علیکم جنرل صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ۔ پی ایس ایل کا فائنل ہونے میں اب صرف 2 دن رہ گئے ہیں، سیکیورٹی کے خدشات تو ہیں، لیکن جو سیاستدانوں کے بیانات آ رہے ہیں سیکیورٹی پہ تحفظات کے حوالے سے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں یہ بیانات مناسب نہیں ہیں، نہ ہی یہ بیانات قومی وقار کے لیے موافق ہیں، مطابق ہیں، اور نہ ہی ان سے عوام میں کوئی اچھا اثر جائے گا۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیکیورٹی کے انتظامات تو ان اینی کیس ہوتے ہی ہیں، وہ کرنے چاہیے جی۔ اور خاص طور پہ اگر کہیں بھی اجتماع ہو، یہ نہیں کل عمران خان اگر ایک جلسہ بھی کرنا چاہیں تو اس کے لیے حکومت کو پراپر سیکیورٹی کے انتظام مہیا کرنے چاہیے۔ جی۔ اب اس میں اگر سڑکوں پہ آپ کو چیکنگ سسٹم نظر آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک میچ ہے جو کہ ایک ایونٹ ہے اور آپ نے پہلے سے اناؤنس کیا ہوا ہے، اور انتظام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ آج کل کے حالات میں، آج کل کے دور میں یہ محفوظ طریقے سے ہو۔ جی۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس چوائس کیا تھی؟ ایک چوائس یہ تھی کہ ٹھیک ہے ہم بڑا آسانی سے میچ نہ کرائیں اور ساری ذمہ داریوں سے ہم فارغ ہو جائیں اور مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ جی ٹھیک ہے، چونکہ ایک دھماکہ لاہور میں ہوا تھا اب ہم میچ نہیں کرائیں گے۔ لیکن آپ سوچئے کہ کتنی افسوسناک سچویشن ہوگی جب دہشت گردوں کو یہ پیغام جائے، یہ میسج جائے، اور وہ خوش ہوں کہ صرف ایک دھماکے سے یہ پوری قوم بیٹھ گئی اور اتنا یہ ڈر گئے کہ اب یہ پوری مشینری ان کے پاس ہے، ایک حکومت ان کے پاس ہے، ایک نظام ان کے پاس ہے، اور یہ اس کے لیے اپنے لوگوں کو سیکیورٹی نہیں دے سکے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی نقطہ نگاہ سے ہمارے لیے بڑی ہزیمت کی بات ہوتی، اور دوسری طرف دہشت گردوں کے حوصلے اس سے بہت بلند ہوتے، اور جو دشمن ہیں جنہوں نے ان کو استعمال کیے اس کام کے لیے، ان کے ہاں تو شادیانے ہوتے۔ اب ہمیں ایکچولی یہ میسج دینا ہے، وہ جس طرح بھی ہم میچ کرائیں، ہم نے یہ میسج دینا ہے دہشت گردوں کو کہ تمہارا ایک دھماکہ یا جو دھماکے تم کرو وہ ہمیں اپنے قومی کاموں سے روک نہیں سکتے۔ جنرل صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن جو عمران خان صاحب کے تحفظات ہیں، ہم چاہیں تو ہم تحفظ دیں غیر ملکیوں کو۔ جنرل صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن جو عمران خان کے تحفظات ہیں وہ بھی کافی ویلڈ ہیں۔ اب ان کے انداز پہ یا ان کے الفاظ کے چناؤ پہ تو اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ان کے تحفظات ہیں بالکل ویلڈ ہیں۔ خاص طور پہ جو میں نے ابھی ایک لسٹ بتائی ہے کہ دنیا بھر میں کہاں کہاں ہسٹوریکلی گیمز کو ٹیررزم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی انشور کروائی گئی، اس پر کیا کہیں گے؟ یہی ایک ایسی چیز ہے جو قوم کی سٹرینتھ کو ظاہر کرتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جس نے بھی ہار نہیں مانی وہ بالآخر فاتح ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آئندہ بھی ہم نے اگر یہ میچ کرانے ہیں تو ہماری اہلیت اور ہماری قابلیت جو ہے وہ دنیا تک جائے گی، اور ان کو اندازہ اور احساس ہوگا کہ یہ کھیل وہاں پہ کھیلا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی واقعہ کہیں ہو، آپ کے سیکیورٹی کے انتظامات دیکھ کے بالکل ممکن ہے کہ دہشت گرد ویسے ہی ادھر رخ نہ کریں، کیونکہ ان کو اندازہ ہوگا کہ پکڑے جائیں گے اور سارا کچھ بڑا پرامن طریقے سے یہ ہو جائے۔ لیکن اس کو قبل از وقت یہ سوچ لینا کہ واقعی ہم جو کر رہے ہیں اس پہ بہت کچھ خراب ہو سکتا ہے، یہ میرا خیال درست نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بالآخر جب انشاءاللہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو اس کا بڑا اچھا ایک امپیکٹ آئے گا آپ کے اپنے امیج کے بارے میں بھی اور قوم کے مورال کے بارے میں بھی، اور یہ چیزیں بڑا دور رس نتائج کی حامل ہوتی ہیں۔ ڈر جانے سے یا اس کو ختم کر دینے سے میں سمجھتا ہوں آپ کا نقصان
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर दिफाई तज्जियाकार जनरल अमजद शोएब साहब हमसे बात कर रहे थे। एक तरफ तो सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल तौर पे तैयार हैं पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में करवाने के लिए, लेकिन कुछ इंतजामात अभी भी ऐसे हैं कि जिनकी सूरत हाल कुछ खास तसल्ली बख्श नहीं है, और इन्हीं इंतजामात में से एक टिकटों के हुसूल का मामला है। शायकीन अभी भी उनकी भरमार है, वो टिकटें लेना चाहते हैं, कतारें बना के खड़े हुए हैं, लेकिन टिकटें खत्म हो चुकी हैं और इसका ब्लैक में भी बिकने की खबरें सामने आ रही हैं। एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्टर राय शाहनवाज इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम के आसपास ही मौजूद हैं। राय शाहनवाज, आप बताइएगा कि सिचुएशन क्या है खासतौर पर टिकट्स के हुसूल के हवाले से, और ये बताएं कि 500 के फौरन बाद हजारों की टिकट, 4000 की टिकट मिल रही है और 500 की टिकट्स बहुत कम हैं, तो शायकीन को कितना अफसोस है जिनको टिकट्स नहीं मिली, कितनी परेशानी, कितना गुस्सा है उनके अंदर? गरीदा, इस वक्त मैं बिल्कुल मौजूद हूँ कज़ाफी के सामने। यहाँ पे सूरत-ए-हाल ये है कि कज़ाफी की जो एंट्रेंस है वहाँ पे भी अभी सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पे जो है वो दाखिले की इजाज़त नहीं है। जहाँ तक टिकटों का सवाल है तो पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि महंगा से महंगा जो टिकट है वो 12,000 रुपए तक पहुंचा है। इससे पहले 2006 में ये टिकट जो है जब पाकिस्तान और भारत की सीरीज हुई थी तो सबसे महंगा टिकट इसी कज़ाफी स्टेडियम का जो है वो 6,000 रुपए था, और इससे पहले 150 रुपए से टिकट स्टार्ट होते थे और 500 उसके बाद 1000 तक जाते थे। ये पहली दफा हुआ है कि चूंकि लग ये रहा है कि आईपीएल के बाद जो पीएसएल है ये भी एक इंतहाई कमर्शियल किस्म का जो है वो टूर्नामेंट है, और इसमें सबसे ज्यादा जो मैनेजमेंट की गई है वो मेरे ख्याल में पीसीबी ये चाह रहा है कि पैसे कमाए इससे। और हमें ये जो मालूमात आज मिली हैं, ये जो ऑनलाइन टिकट्स बेचे गए थे 500 रुपए के, ये तकरीबन 1 से 2 घंटे में तमाम के तमाम टिकट बिक गए थे। इसके बाद 4000 के शुरू हुए और उसके बाद 8000 के और फिर 12000 के। अभी जो इतलात आ रही हैं 8000 और 12000 के टिकट कहीं कहीं अवेलेबल है, 8000 तक के जो है और 4000 तक के जो मैक्सिमम टिकट बिक चुके हैं, और 500 का एक टिकट भी मार्केट में इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये एक कमर्शियल एक्टिविटी ज्यादा। राय शाहनवाज, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जिन लोगों ने ऑनलाइन अपनी टिकट्स बुक करवाई थी उनकी ऑनलाइन टिकट्स कैंसिल हो गई हैं, कुछ ऐसी खबरें भी हैं? नहीं खरीदा, ऐसी बात नहीं है। जो ऑनलाइन टिकट जिन लोगों ने खरीदी थी उनको एक स्पेशल कोड असाइन किया गया था। वो एक लाहौर का एक निजी होटल है, वहां पे काउंटर लगाया गया था जहां से क्यू टिकट्स की जो वेबसाइट है उसका प्रिंट जो है वहां से ले सकते थे। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड सिलसिला था। इससे पहले जितने भी ऑनलाइन टिकट्स बेचे गए हैं जो दुबई और शारजा में थे वो भी उसी वेबसाइट के थ्रू बेचे गए हैं, तो वहां पे इतना बड़ा इशू नजर नहीं आया। लेकिन इशू ये है कि हुआ ये है कि बहुत से लोगों ने बल्क में टिकट्स ऑनलाइन खरीदे हैं, क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड के जरिए टिकट खरीदना था तो लोगों ने 500-500 1000 टिकट्स खरीद लिए हैं और फिर आगे वो महंगे दामों बेच रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। रायशा हमें बता रहे थे कि किस तरह की तैयारियां हैं सिक्योरिटी की और इसके साथ टिकट्स वालों की सूरत हाल क्या है। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आज के दिन की बल्कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख की बड़ी खबरों में से एक खबर के हवाले से बात करेंगे। फाटा के मुस्तकबिल का आखिरकार फैसला हो गया। वेलकम बैक। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर फाटा के हवाले से बहुत अच्छी खबर आई है कि वो चीज जिसके तायुन का, जिसका इंतजार किया जा रहा था एक लंबे अरसे से, बल्कि 70 साल में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फाटा के मुस्तकबिल का वाज़े तायुन कर दिया गया है। आज वफाकी काबीना ने उन 24 सिफारिशात की मंजूरी दे दी है जो कि फाटा इस्लाहात कमेटी ने सामने रखी थी, जिसके तहत फाटा को 5 साल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाया जाएगा और इस 5 सालों के दौरान इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि 2018 के इलेक्शन में फाटा से अरकान पार्लियामेंट खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में भी मुंतखब किए जा सकेंगे। फाटा से काले कानून FCR को खत्म किया जा रहा है, उसकी जगह रिवाज रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रिवाज रेगुलेशन या रिवाज एक्ट पे भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। 30 अप्रैल 2017 तक फाटा की तरक्याती पैकेज के लिए तैयारी का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जो कि 10 साला फाटा का तरक्याती पैकेज होगा। मुनासिब मकामात पर फाटा को CPEC के साथ मुंसलिक भी कर दिया। फाटा के लिए
बेहतरीन तरीका जाएगा। इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात, सुप्रीम दायरा स्टेट बैंक की जाएगी, पूरे शहरों दिया जाएगा इनकम और दीगर स्कीमें बेहतर। आज के दिन की 17 साल सबसे बड़ी के अलावा कि 2000 में पहला के इलाज डेट ये भी आपको फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात भी पे हम फजल रहमान ग्रुप के सीनियर रहनुमा सेंटर अताउर रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के भाई भी हैं। असद कैसर स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और सियासत जाहिद खान साहब भी मेरे साथ होंगे। अताउर रहमान साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, कमेटी ने जो फाटा इस्लाहात की है उसने 7 एजेंसीज का दौरा किया, कोई 3000 से ज्यादा कबायली अमायदीन से उसने बातचीत की थी, नौजवानों से मुलाकात की, तालिब इल्मों से, वकला से मुलाकात की, फाटा के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की, पूरे पाकिस्तान के अवाम से फीडबैक लेके उसने ये फैसला किया कि फाटा को केपी में जम कर दिया जाए। लेकिन आपकी जमात इसके मुखालिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूकी साहब, ऐसा है कि जमीयत उलमा इस्लाम का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल वाज़ेह था जी। और जमीयत उलमा इस्लाम ठीक है एक राय रखती थी कि इसको अलग सूबा बनाया जाए जी, लेकिन उसके लिए हम बज़िद नहीं थे, न ही हम जम करने के लिए कोई रुकावट थे जी हमारी जो राय थी वो ये थी कि फाटा के अवाम से पूछा जाए जी। गुजारिश ये है कि एक तो फाटा के अवाम से नहीं पूछा गया, जो ये कह रहे हैं इसमें भी झूठ इन्होंने शामिल किया हुआ है, धोखा किया हुआ है। इन्होंने कहा है कि हमने तमाम FR से पूछा है, 6 FR जो हैं उन्होंने इसके खिलाफ फैसला दिया है, जबकि इन्होंने लिखा है कि इसमें 5 FR हमारे साथ हैं। तो ये एक झूठ पर बनाया गया। फिर ये कहना कि हजारों लोगों से पूछा है, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर में बैठकर 200-250 लोगों को, उन लोगों को जो जमा किया गया है कि जो उनकी राय के खिलाफ बोल ही नहीं सकते थे पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर में, और किस प्रेशर के साथ लोगों को लाया गया, फिर किस तरह कहलवाया गया। तो इसी तरह कौमी असम्बली या हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं उसमें से भी चंद वो लोग जो मफाद परस्त हैं, जिनकी अपने अपने मफादात इस फैसले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को कहा गया है। अक्सरियत जो है पार्लियामेंट के मेंबरान की भी इसके खिलाफ है, इस तरह कौम भी उसके खिलाफ है। फिर जरगों के साथ जो कमिटमेंट की गई थी, मोहतरम जनाब वजीर आजम साहब ने जो कमिटमेंट की थी, पीपल्स पार्टी वालों ने जो कमिटमेंट की थी, कबायली अवाम के नुमाइंदा जरगे के साथ जो कमिटमेंट हुई थी, ये तमाम चीजें वो हैं। फिर जमीयत उलमा के साथ जो कमिटमेंट हुई थी, जो बात हुई थी, तो एक सरासर। लेकिन अताउर रहमान साहब, आपके अलावा और एक आध जमात दीगर के अलावा फाटा की, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें, तमाम दीगर जमातें वेलकम कर रही हैं इस डिसीजन को। अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान साहब चूंकि हमारे साथ हैं, जाहिद खान साहब क्या कहेंगे? मेरी बात सुने। अताउर रहमान साहब, आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन चूंकि बाकी गेस्ट भी हैं। तो पूरी सुन लें, मेरी बात पूरी सुन लें, फिर उसके बाद उनसे बात करें। गुजारिश ये है कि हम ये नहीं कहते कि कौन कौन सी जमातें किस किस के साथ हैं, किसके साथ नहीं है। हम ये समझते हैं कि फाटा के अवाम से पूछा जाना चाहिए था, और अगर फाटा के अवाम से, ये दीगर जमातें भी फाटा के लोगों की नुमाइंदा जमातें हैं। अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान साहब, क्या कहेंगे आप आज वफाकी काबीना के इस फैसले पर? देखिए, असल में ये बात यही कि मौलाना साहब के अपने ख्यालात हैं और उनके अपने राय हैं।
जिस राय को ये मुहतरम समझते हैं, हम उसके बरअक्स दूसरे राय को ज्यादा मुहतरम समझते हैं जी। कि हम समझते हैं कि पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, अगर हमें अवाम वोट देते हैं और हमें वो कमरानी के लिए जाते हैं, चाहे वज़ीर आज़म हो तो भी वोट के जरिए वज़ीर आज़म बना है, चाहे अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ वजारतों में गए हैं तो भी आपको अवाम ने वोट दिया, उस वोट के जरिए गए। इसी तरह अगर खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर बैठा है तो अवाम ने वोट दिया, वोट के जरिए वो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। तो हम इसी तरीके से समझते हैं कि क्या पार्टी के जो अवाम है, जिसने अपने मुंतखब नुमाइंदों को वो हक दिया है और उसने जाके आपने खुद देखे, आपको पहले याद होगा कि इन लोगों ने एक बिल जमा किया था पार्टी के मेंबरान ने, जिसके 19 उसके ऊपर दस्तखत वो मैंने भी देखी है, और वो जब जमा किए हैं सेनेट में और नेशनल असेंबली में, उसके बाद हुकूमत ने ये कमेटी बना दी जिसपे पार्लियामेंटेरियन पार्टी के भी इतराज था, हमें सबको भी इतराज था कि भाई उसमें तो पार्टी के नुमाइंदा ही नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन उन लोगों का जो ख्याल था हुकूमत का, जो हमारे सोच के अंदर था कि हुकूमत को डिले करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत की उस कमेटी ने काम किया बकौल के आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो कहते हैं हमने सारे अवाम से पूछा और हमने जाके पूछा, उन्होंने कहा कि लॉयर से पूछा, स्टूडेंट से पूछा, जो सोशल सोसाइटी उनसे पूछा, मलाकानान से पूछा, लेकिन उसके बरअक्स हम कहते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो इस बात पे मुतफिक है कि जो वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ शामिल किया जाए। तो उसकी राय को भी उतना एहतराम देना चाहिए जो बाकी मांगा पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों को एक एहतराम दिया जाता है। तहरीक इंसाफ की राय जरा ले लें, क्योंकि स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और 2018 के इंतखाबात में फाटा से अरकान पार्लियामेंट ने भी कौमी केपी असेंबली में आना है। असद कैसर साहब, वैसे तो तहरीक इंसाफ नून लीग के हर फैसले की मुखालिफत करती है, लेकिन इस फैसले को कम से कम आप खुशाइन करार देंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत तारीखी फैसला है और हम समझते हैं कि ये बहुत पहले होना चाहिए था। हमारी खुद भी आज असेंबली का इजलास था तो मुझे पूरा डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन जो असेंबली में बात हुई और जिसमें सिकंदर खान ने बात की कि उन्होंने वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि ये 2018 इलेक्शन के बाद सूबाई असेंबली में उसको नुमाइंदगी मिलेगी। तो मैं थोड़ा ये कंफर्म करना, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि इसका फैसला फौरी हो जाए इसको जितना, क्योंकि जो फाटा में इस वक्त सिस्टम चल रहा है ये तो नाकाम हो चुका है। अगर कोई ये समझता है, मैं मौलाना साहब हमारे लिए बहुत मुहतरम है, बहुत रिस्पेक्टेबल है, मैं इसकी कदर करता हूँ और ठीक है उसके अपने ख्यालात होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम बिल्कुल नाकाम हो चुका है। उसकी वजह से इस पूरी खासकर पाकिस्तान में जो बदअमनी है और जो आपने सिस्टम की नाकामी की बात की है, तो उसी गलत सिस्टम को एफसीआर को खत्म किया जा रहा है, लेकिन उसकी जगह रवाज रेगुलेशन रवाज एक्ट लाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, रवाज एक्ट मुनासिब है फाटा के लिए, जबकि वो केपी? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि रवाज एक्ट बिल्कुल जरूरी है, ताकि जो रवाज एक्ट है उसको मजीद स्ट्रेंथन करना चाहिए, जिरगों को मजीद स्ट्रेंथन करना चाहिए। ठीक है, अपना एक कल्चर, क्योंकि वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। जाहिद खान साहब, आप भी रिवाज एक्ट के हामी हैं? नहीं, देखिए, रिवाज एक्ट के जिस तरीके से रिवाज एक्ट का जो हमने पढ़ा है वो आया है, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा उसके जरिए उसको करेगा, तो वो नहीं है। रिवाज जो है वो आवाम का अपना एक सिस्टम है जो अभी भी, मैं मलाकंड डिवीजन से ताल्लुक रखता हूँ, मलाकंड में अभी भी जो हम सूबे का हिस्सा है तब भी वो रिवाज चलता है और वो पूरा खैबर पख्तूनख्वा में चलता है, उसमें कोई कतरत नहीं है। लेकिन उसके लिए एक्ट बना के भेजना, मेरे ख्याल में उस पर एक गलत कानून मुसरत करना है, जिसके हम अभी आपने बात की कि 5 साल के लिए हम इसलिए इस पे अभी क्लियर नहीं है कि ये 5 साल क्यों रखा गया है। जब आपने अमेंडमेंट करनी है और आपने मर्जर करना है तो आप स्टेज फॉरवर्ड करवा दे, उससे ज्यादा बेहतर होगा, बजा के आप 5 साल के लिए अगर आप असेंबली में लोगों को बिठाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, मौलाना अतान साहब और असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया। तमाम जमातें सिवाय JUI फे के और अचकजई साहब की जमात के आज के इस वफाकी काबीना के फैसले से खुश हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात फिर भी रखती हैं कि फाटा को फौरन खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़म कर देना चाहिए। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि एक हफ्ता हो गया है लेकिन पानामा केस का फैसला अभी भी नहीं आया, कौम की बेचैनी बढ़ रही है।
वेलकम बैक। एक हफ्ता हो गया है पानामा केस का फैसला अभी तक सामने नहीं आ सका। गुज़श्ता जुमेरात 23 फरवरी वो दिन था जब 26 समातों के बाद पानामा केस सुनने वाले बेंच ने फैसला महफूज कर दिया था और ये भी कहा था कि शॉर्ट ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा बल्कि तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। उस दिन के बाद से कौम आज तक मुंतजिर है कि पानामा केस का फैसला कब आएगा। हर गुजरते दिन के साथ कौम की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। 3 अप्रैल 2016 को पानामा पेपर्स का जब इंकिशाफ हुआ तो 24 अगस्त को जमात इस्लामी ने इसके बारे में अपनी पिटीशन जमा करवाई। 29 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 23 सितंबर को शेख रशीद साहब ने अपनी पिटीशन जमा करवाई। 1 नवंबर 2016 को पानामा केस की पहली समाअत हुई थी। 5 नवंबर 2016 को पहला कतरी खत पानामा में आया। 9 दिसंबर 2016 को पानामा केस की 10वीं समाअत हुई और पहले बेंच की 10वीं समाअत हुई, जिसके बाद ये बेंच टूट गया चीफ जस्टिस अनवर सईद जमाली साहब के रिटायरमेंट की वजह से। 4 जनवरी 2017 से इस केस की दोबारा समाअत का आगाज हुआ और 23 फरवरी तक इसकी समाअतें चलती रहीं। 26 समाअतें हुई जिनमें 15 दिन का वक्फा भी आया। बेंच के एक मौसिस रुकन जस्टिस शेख अजमत सईद की नासाजी तवा की वजह से उन्होंने रिज्यूम किया और उनके रिज्यूम करने के तकरीबन एक हफ्ते के अंदर पानामा केस की समाअतों को मुकम्मल कर दिया गया। 23 फरवरी को यानी गुज़श्ता जुमेरात को जब पानामा केस की समाअतें मुकम्मल हुई तो उसके बाद मुख्तलिफ जमातों के सियासी रहनुमाओं का क्या कहना था आने वाले मुतवक्का फैसले के बारे में। जरा सुनिए। जो भी फैसला आएगा पाकिस्तान का फायदा होगा, पाकिस्तान की बेहतरी होगी। क्या फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। फैसला जो जुडिशल कमीशन ने किया था धांधली के ऊपर, मैं समझता हूँ फैसला ठीक नहीं था, हमने कबूल किया। आज भी जो भी फैसला होगा कल आएगा इंशाल्लाह कबूल करेंगे। चाहे फैसला हमारे खिलाफ हो, हम हार के भी जीतेंगे। अगर ये जीत गए तो अवाम में ये पहले ही हार गए हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि यहाँ से इंसाफ जीतेगा और करप्शन का ताबूत जरूर निकलेगा। हिस्ट्री को देखते हैं तो हम इतना होपफुल नहीं होते हैं कि श्री रीसो के खिलाफ एक फैसला आएगा। कि अदालत के फैसले मानने ही पड़ते हैं, तो हमें मालूम नहीं अदालत का फैसला क्या आएगा। अदालती फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, एतराज़ात भी किए जाते हैं, लेकिन अदालती फैसलों के सामने सर झुकाना चाहिए और उन पर मिनवन अमल करना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ता रहे। सियासी जमातों के साथ साथ इन सियासी जमातों के वकला का क्या मौक़िफ़ था पानामा केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद, वो भी जरा सुनिएगा। नया चीफ जस्टिस है जनाब सब्ज़ार साहब। तारीख में इसने जो बदलेगी मर्जी फैसला। मेरी नजर को किया जा है, नतीजे में इंसाफ जो फैसला तरीके मनोवान एक को क्या की सीनियर साहब नामी साहब बहुत एक ठीक आएगा तवक्को रही है कौम की। वालेकुम अस्सलाम और शुक्रिया। देखें, सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई ऐसे कवायद और ज़वाबित तो मौजूद नहीं कि जहां के जज दिन में दिया जाता लेकिन ये है पर नहीं वो ऐलान चाहिए।
शामिल साहब, ये तो क्या है कि मामले निपटा सकते हमने कहीं भी कि आप कैसे वो तो 3 बार बारिश तो था जो है तो जजेस गौर से होगा कहते हैं वो बात नहीं होता है। कुछ तो सोचते हैं अभी मुमकिन का सियासी इलेक्शन भी फैसला तो जाहिर है असर होगा, असर होगी तो उन असर होगी नून जो है होती हैं को पाकिस्तान की कई उस वक्त और थी गुजरती चली गई बहुत पहली गवर्नर के ठीक है मुजीबुर रहमान शाह राय दे फैसले की सूरत क्या होगा के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से कामयाब रहेगी या नाकाम। तमाम अरकान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर इस बिल को पास किया। जितना शर्मिंदा मैं आज हूँ शायद इससे पहले मैं नहीं था। नापसंदीदगी के साथ, कराहत के साथ हम एक चीज़ तस्लीम कर लेंगे। इस वक्त फौजी अदालतों का क़याम वक्त की अशद ज़रूरत है। फौजी अदालतों के मामले पे नेशनल एक्शन प्लान को डिस्कस करने के लिए, फाटा इस्लाहात को डिस्कस करने के लिए और पंजाब में मुबैना तौर पे पख्तूनों के साथ जो इम्तियाजी सलूक की खबरें या अफवाहें सामने आ रही हैं इन सब को डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर रखी थी, लेकिन कुछ जमातों की अदम दिलचस्पी और कुछ जमातों की अदम शिरकत के बाद इसे मल्टी पार्टीज कॉन्फ्रेंस या मल्टी कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये APC या MPC कामयाब रहेगी या नहीं, इसी मामले पे बात ये मरकजी सीनियर रहनुमा सेंटर सईद गनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। कुछ जमातों की अदम दिलचस्पी, कुछ जमातों की अदम शिरकत APC को MPC बना दिया और बहुत से मामलात ऐसे हैं आपके इस APC के एजेंडे में जो कि पहले ही हल हो चुके हैं। फौजी अदालतों पर सबका इत्तेफाक हो गया है, फाटा में इस्तिहाद आज वफाकी काबीना ने फैसला कर लिया है, पख्तूनों के साथ जो पंजाब में रवैया उस पर ऑफिशियल वर्जन आ चुका है कि ये बिल्कुल गलत झूठी अफवाहें हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी हवा में तीर नहीं चला रही ये कॉन्फ्रेंस करवा के? देखिए, अगर मैं एक लम्हे के लिए मान भी लूँ कि हम हवा में तीर चला रहे हैं, तब भी अपोजिशन जमातों का उन इश्यूज़ पर मिलकर बैठ जाना जो इस वक्त आम लोगों के हैं या जो हम समझते हैं कि इस वक्त इस मुल्क में ज़ेर बहस हैं। फाटा का मसला बिल्कुल डेड नहीं हुआ और वो बड़ा संगीन इशू है और मैं समझता हूँ कि पहली मरतबा सेनेट में
फाटा के तमाम जो सैनेटर्स हैं उन्होंने ये लिख कर दिया है चेयरमैन सेनेट को कि हम अपोजिशन की बेंचेस पर बैठना चाहते हैं। ये बड़ा रेयर होता है, इस तरह हुआ नहीं है कभी, मुझे याद नहीं पड़ता हुआ है। तो वो खुश नहीं है जो हुकूमत कर रही है। हुकूमत ने जो उनसे पहले कमिटमेंट्स की, जो वादे किए, वो पूरे नहीं कर रही है। अब अगर पाकिस्तान के किसी हिस्से में रहने वाले लोगों में कोई बेचैनी है और पीपल्स पार्टी दीगर जमातों के साथ बैठकर उसको डिस्कस करना चाहती है, तो मैं नहीं समझता कि ये बात पुरानी हुई है। दूसरी बात ये, आपने कहा कि ये तय हो गया। देखिए, ये जो मामला फौजी अदालतों पर जो इत्तेफाक हुआ है वो तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है। पीपल्स पार्टी जब 5वें इजलास में शरीक हुई थी और जब उससे निकल कर आई थी, उस वक्त हमने ये कहा था कि हम दीगर तमाम जमातों को मदऊ करके कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके अंदर अब बात करेंगे, हम इन मीटिंग्स के अंदर अब नहीं जाएंगे। हमने पहले तय कर लिया था, अगर उसके बाद दीगर जमातों में इत्तेफाक हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, हम उस पर बात करने को तैयार हैं, मजीद उस पर आगे बात कर लेंगे। लेकिन पख्तूनों के साथ जो आप कह रही हैं कि अब ये सामने आ गया कि जी ये गलत फहमी थी, लेकिन कोई भी सबब था, सूबों के दरमियान एक, मैं समझता हूँ कि एक नफरत का माहौल पैदा हुआ। एक तरफ ये बात फैली कि जी पंजाब में अगर पठानों के साथ ये हो रहा है, तो दूसरी तरफ आपने ये देखा होगा कि फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो पंजाब से आने वाले लोगों के साथ सवालात किए जा रहे थे। फिर अगर सूबा सिंध की कहीं बात की गई तो उनके लोगों के साथ इस तरह की बात की जा रही थी। इस वक्त जिस बहुत शुक्रिया सेनेटर सईद गनी साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow.